What is this? Yes, you get it right. This is lemon. And this is a soap. This will make your face twist and this will feel you slippery. So let's see the physical properties of acids and bases today. Let's see the physical properties of acids and bases. Acids are the chemical substances which are sour in taste. अगर कोई भी एसिड है विच इज इडाइबल लाइक एसिड्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन फूड्स, जब भी उसको हम टेस्ट करेंगे तो हमें खट्टा लगेगा, जैसे कि अभी मैंने लेमन का एग्जांपल दिया था. सो लेमन जब भी आप उसको टेस्ट करोगे, हाउ विल यू फील द टेस्ट? सॉर. whereas in the case of bases it will be bitter in taste. जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं या हमारे घर में जितने भी क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं, they all are bases. Acids change the color of blue litmus to red. As you all know that litmus is a natural indicator which tells you the presence of an acid or a base. So in the presence of an acid, the litmus change blue to red, whereas in the case of bases, the color of litmus gets changed from red to blue. Acids release hydrogen ion. It will always release H ion in solution. Like HCl को जब भी आप water में dissolve करोगे, HCl को water में dissolve करोगे, what are you going to get? H3O plus Cl. Chloride ion will get separated. So जब भी हम किसी भी एसिड को, मिनरल है या ऑर्गेनिक है, हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, हमें क्या मिलता है? एच आयन मिलता है. एंड दिस H3O इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम. Now, what are the some basic examples of acids? Basic examples of acids can be HCl, HNO3 और natural acids के केस में acetic acid हो गया, ठीक है, acetic acid है, oxalic acid है, tartaric acid है. These all are the examples of acids. Whereas in the case of bases, you have NaOH, that is sodium hydroxide, calcium hydroxide. Or magnesium hydroxide. These all are the examples of bases. Let's see the first chemical property, reaction of acid with metal. So whenever an acid reacts with metal, it releases hydrogen gas. The base reaction goes like this: metal plus dilute acid gives salt plus hydrogen. This H2 is a gas. Now if I write the reaction of zinc with H2SO4, तो क्या बनेगा? यहाँ देखते ही समझ में आ रहा है, Zn will combine with SO4, तो बन जाएगा zinc sulfate plus H2. H2 gas will be released. Now, can you comment me the product of this reaction when iron gets reacted with H2SO4? Find out the product of this reaction and comment me below. If any base reacts with metal, then also there is release of H2 gas. So the base reaction goes like this: metal plus dilute base will give you again salt plus H2. Now if I write the reaction of zinc again with NaOH, it will form twice Na, ZnO2 plus H2 gas will be released. And the name of this product is sodium zincate. Now here you find that whether iron also react with a base in the similar manner. Just find it out and comment me the answer below. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, इन सब में क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट प्रेजेंट होता है. अब ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा रिलीज होगा, एंड वॉट एवर विल बी लेफ्ट उसको साथ में जब आप कलेक्ट करके लिखोगे देन इट विल बिकम अ सॉल्ट. तो रिएक्शन सही लिखने का यही एक तरीका है दैट वॉट एवर रिएक्टेंट्स यू हैव बीन गिवन, उनमें से सबसे पहले क्या करो ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अलग कर दो. बिकॉज यू नो दैट वेन एवर द एसिड रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उसमें से हमेशा रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसमें से हमेशा रिलीज होगा. सो हमने उसको निकाल के अलग कर दिया. अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया? ये सी ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 3 है. अभी हमारे पास ऑल थ्री कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट साइड में. बचा क्या? कैल्शियम बच गया यहाँ और Cl बच गया. इसको साथ में लिखोगे तो ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया. सॉल्ट. सो वेन एवर यू राइट द रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपलसरी प्रोडक्ट्स है ना, जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनको सबसे पहले आप निकाल के अलग कर दो. आपका रिएक्शन कभी भी गलत नहीं होगा. अब इसमें देखें, अगर हम CaCl2 plus CO2 plus H2O, the question which is asked maximum times in the board exam is the test for carbon dioxide.
विच यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। अभी मैंने वीडियो से पहले दिखाया था कि जब विनेगर में आप सोडा ऐड करते हो तो ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलता है उसमें से, जैसे हिज साउंड के साथ एक गैस रिलीज होती है विच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। And the test for this carbon dioxide is that when it is passed through calcium hydroxide, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक्ट लाइम। जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है विच इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट। और इसी वजह से हमेशा हमें कैसा होगा ना, मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर विल ऑलवेज टर्न मिल्की। सो दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, लाइम वाटर। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। स्लेक्ट लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, मिल गया अपने को कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब इसके अंदर जब कभी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करवाते हैं, व्हेन CO2 इज पास्ड इन एक्सेस, उस केस में क्या बनता है, उस केस में मिल जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दिस प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। Now see the next reaction, reaction of acid with metal oxides. Metal oxide का reaction acid के साथ होगा तो भी हमें क्या मिलेगा, salt और water. Now again you know that water is a by product, तो water को निकाल के आप अलग कर दो पहले। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया, Cu और Cl, ये हमारे पास बच गया। So it will become CuCl2 and this is our salt. See the reaction of bases with non metallic oxide। अब नॉन मेटल्स कौन कौन नॉन मेटल्स होते हैं, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, राइट। तो बेसिस के साथ जब नॉन मेटल्स का रिएक्शन होगा तो बेस रिएक्शन क्या है, बेस रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना है, मेटल का रिएक्शन हुआ बेस के साथ, बेस रिएक्शन है बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। अब देखो सॉल्ट के साथ वाटर हमेशा बनेगा, वी डोंट नो कौन सा नॉन मेटल है ना, तो वाटर तो हम पहले ही अलग कर देंगे, वाटर को पहले अलग कर दो एंड रेस्ट यू कैन कंबाइन एंड फॉर्म दी सॉल्ट। अब जैसे कि यहाँ CO2 का रिएक्शन है CaOH होल ट्वाइस के साथ, ठीक है। सो व्हाट इट विल गिव, सी पहले H2O निकाल दो, H2O। यहाँ अगर हम देखें तो 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स निकल गए, 1 ऑक्सीजन का निकल गया, पीछे बचा हमारे पास 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CaCO2 तो ऑलरेडी है, एक और बच गया, तो ये क्या हो गया CaCO3। तो अपने को क्या मिला यहाँ, कैल्शियम कार्बोनेट एज अ सॉल्ट। अब अगर मैं इसको कर दूं SO2 की रिएक्शन आपको करनी है CaOH होल ट्वाइस के साथ करो तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, वाटर निकाल दो पहले। Think and comment in the box, pause and comment। Very good, yes, very nice, it will be CaSO3। again the name of this product is calcium sulfide, right। तो इस तरह से क्या है, which the questions which are not given in the book, as you know that in this reaction you are going to get salt and water, any non-metallic oxide can be given to write the reaction। So the correct strategy is whatever byproduct is सबसे पहले उसको लिख दो and then the combined rest। अब अगर इसमें इसका प्रोडक्ट का नाम भी हमें ध्यान नहीं है, but even if you write the formula you will get the marks, right। तो ये चीज़ इस तरह से हमें करना है। Whenever an acid reacts with a base, कभी भी कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमेशा वाटर एंड सॉल्ट। बहुत कॉमन रिएक्शन है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, दैट इज HCl प्लस NaOH, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन इस OH के साथ कंबाइन करता है और Cl Na के साथ कंबाइन कर जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, NaCl विच इज नोन एज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इनके अगर नाम लिखे तो ये तो क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sodium hydroxide, sodium chloride which is also known as common salt plus water। जो घरों में हम लोग एक कॉमन अपना ये नमक यूज करते हैं, दिस इज द सेम नमक, वही NaCl है, बस हम लोग जो घरों में यूज करते हैं दैट इज द रिफाइंड वन। Whenever any acid is dissolved in water like HCl plus H2, so it forms hydronium ion, ये बनाता है hydronium ion। This H2 will get combined with this hydrogen and forms H3O plus।
plus Cl negative. And the H ion keeps on combining with H2O and it forms the hydronium ions. Whereas if any base is dissolved in water, then it gets dissociated into sodium plus and OH negative. So it always gives OH ion. So whenever an acid is dissolved in water, it forms hydronium ions or hydrogen ions. This is known as hydronium ion. Check the formula properly, and this is hydrogen. And this is hydroxide ion. Effect of dilution on an acid or base. Mixing of an acid or base with water is known as dilution. तो अगर एसिड या बेस का डाइल्यूशन होगा तो डेफिनेटली जो एसिड है वो एच आयन रिलीज करता है, बेस जो है वो एच आयन रिलीज करता है, तो डेफिनेटली उनके आयंस में क्या होता है, कमी आती है. बट वेन एवर यू डिजोल्व एन एसिड और बेस इन वाटर, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, सो दैट इज वाई एसिड्स जो है ना, उनको बहुत धीरे धीरे बीकर का जो वॉल है उससे धीरे धीरे हमें उसको ऐड करना चाहिए विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग. एंड दिस क्वेश्चन कम्स मेनी अ टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम. It's an important concept that why water should not be added to the concentrated acid, because if you add water to the concentrated acid, then in that case there is a large amount of heat release and it may cause the solution to splash and it may cause burns. So this is how you need to write the answer to this question, that why water should not be added to the concentrated acid. Here we complete all the physical properties of physical and chemical properties of acids and bases.